بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں حادثات کا سلسلہ جاری۔ ضلع ہرنائی میں ایک ایسے حادثے میں 6 کانکن زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کانوں میں مناسب سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے باعث گزشتہ سال 136 کانکن جاں بحق ہوئے تھے۔ تفصیلات عزیز مری کی اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کی کوئلہ کانوں میں حادثات کا سلسلہ جاری۔ ہرنائی کے علاقے شاہرگ میں پیش آنے والے ایک نئے واقعے میں 6 کارکن جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کان میں حادثہ گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے عہدیدار عبدالحلیم خان کا کہنا ہے کان کو کلیئر کرائے بغیر کام شروع کیا گیا تھا۔ یہ حادثہ پیش ہوا ہے، حالانکہ ان کو پہلے بھی منع کیا، اس مائنز کو بند کیا ہوا تھا، لیکن ٹھیکیدار نے اس کو شروع کیا ہے اور بقول PMDC والوں کے کیا میں بتائے بغیر۔ مزدور رہنماؤں کے مطابق گزشتہ سال ایسے حادثات میں 120 سے زائد کان جہاں بحق ہو گئے۔ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ 136 ہے پچھلے سال، صوبہ خیبر پختونخوا 80 ہے۔ مزدور تنظیموں کے عہدیدار کوئلہ کانوں میں حادثات کی سب سے بڑی وجہ سیفٹی انتظامات میں کمی کو قرار دیتے ہیں۔ سفیدے کا لکڑی آ گیا، وہ بھی اس کو ککر کی بجائے وہ دے رہے، یا کمی ہے لکڑی کا یا وہ کچھ مہنگا ہے۔ اب میں مالک کا تو یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ کم سے کم خرچے میں کوئلہ نکلتا جائے، پیسہ آتا جائے۔ مزدور رہنماؤں نے حکومت سے کوئلہ کانوں میں سیفٹی انتظامات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین عاصم بلوچ کے ساتھ عزیز مری، نیو کوئٹہ۔ احمد پور شرقیہ میں جان بچانے والی ادویات مہنگی ہو گئی۔ شوگر، بلڈ پریشر، نزلہ زکام اور بخار کی ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ مزید جانیں گے گلشیر سے۔ جی، احمد پور شرقیہ میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جان بچانے والی ادویات بھی مہنگی ہو چکی ہیں، اور خاص طور پر شوگر، بلڈ پریشر اور نزلہ زکام کی ادویات بھی جو ہے مہنگی ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی واقعی یہ ٹیکسز کی وجہ سے مہنگائی بہت ہو چکی ہے، دوائیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، خاص کر یہ نزلہ زکام، بلڈ پریشر کے لیے دوائیاں بہت مہنگی ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ وزیر اعظم سے التجا ہے کہ یہ ٹیکسز کو کم کیا جائے جس سے مہنگائی کم ہو جائے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکسز کی وجہ سے ادویات بہت مہنگی ہو چکی ہے اور جس میں مریضوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کیا ہے خوددارہ مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ جی، مہنگائی کے نئے طوفان نے عام آدمی کے لیے گھر بنانا بھی مشکل کر دیا ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث تعمیراتی صنعت انتہائی متاثر ہے۔ شعبہ تعمیرات سے وابستہ افراد تعمیراتی سامان مہنگا ہونے پر پریشان ہیں۔ غازی وسیر کی رپورٹ۔ ملک میں مہنگائی کا نیا طوفان، تعمیراتی سامان کی لاگت میں مسلسل اضافہ، سستے گھروں کی تعمیر کو بریک لگ گئی۔ ایک ماہ کے دوران سریے کی قیمت میں 1.5 لاکھ روپے ٹن تک اضافہ۔ مارکیٹ میں لوکل سریا 2,70,000 روپے فی ٹن، جبکہ برانڈڈ سریے کی قیمت 3,10,000 روپے فی ٹن تک جا پہنچی۔ کوئی بندہ کو لینے کے لیے آج بھی رہا ہے، ڈیلی ہم یہاں آتے ہیں، صبح کو مغرب میں بیٹھے ہوتے ہیں، چند کوئی گراہک وغیرہ وہی امیر کوئی ہو تو کوئی آ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں آ رہا۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ یہاں آدمی اپنا پیٹ پالے یا یہ مٹیریل خریدنے کے لیے آئے۔ ریت، بجری، سیمنٹ، اینٹوں سمیت دیگر سامان کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ ہو گیا۔ پہلے جہاں ایک کمرے کی تعمیر کے لیے 1.25 لاکھ روپے کا لینٹر پڑتا تھا، اب یہی لینٹر ڈالنا 2.5 لاکھ روپے میں بھی مشکل ہو گیا۔ تعمیراتی سامان کی قیمت میں اضافے کے بعد تاجر اور بلڈر سمیت عام آدمی بھی پریشان ہے۔ کیمرامین شعیب میرانی کے ساتھ غازی وسیر، نیوز گھوٹکی۔ فیصل آباد میں بڑھتی مہنگائی کے باعث پرندوں اور جانوروں کی خوراک کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ مہنگائی سے پرندوں کی فروخت میں خاطر خواہ کمی آنے سے ان بے زبان جانوروں اور پرندوں کی خوراک پوری کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ جویریہ نذیر کی رپورٹ۔ مہنگائی کا پرندوں کی خوراک پر کڑا وار، دکاندار ہوئے بے حال۔ خوراک اور پرندوں کی فیڈ کی قیمتوں میں اضافے سے پرندہ فروش افراد بھی پریشان۔ انہاں کو پرندے دی خوراک دا ریٹ بڑھاتا نا حکومتاں نے، تو ہر آدمی پرندے سیل کرن دے ایتھے آگے، دکاندار بھی نہیں خریدتے، انی قیمت ادھی قیمت تے پرندے رہ گئے ہوئے۔ پرندوں اور پالتو جانوروں کی خوراک میں اضافے سے انہیں گھروں کی رونق بنانے والے شہری بھی بل بلا اٹھے۔ شہریوں کا کہنا ہے اب پرندے اور جانور رکھنا بھی خواب بنتا جا رہا ہے۔ طوطوں کی ویسے
प्राइस कम हो गई है, अब दाना महंगा हो गया है। दाना महंगा होने की वजह से घर वाले भी अब काफ़ी बोलते हैं कि आपने तोते रखे हुए हैं, इतना महंगा दाना हो गया, कैसे यानी कि करना है। गरीब आदमी का शौक ये रहा ही नहीं है। अब जो पहले कभी जानवर बेचे नहीं थे, अब मार्केटों में बेचने के लिए फिर रहे हैं। दूसरी जानिब दुकानदार शिकवा करते हैं बढ़ती महंगाई से जानवर परिंदे सस्ते और खुराक महंगी हुई है, जिसकी वजह से लोगों में परिंदों और जानवरों को रखने का रुझान कम होता जा रहा है। हुकूमत बेजुबान जानवरों की खुराक की कीमतें कम करे। कैमरामैन मोहम्मद इब्रार के साथ वीरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। सोई गैस की लोड शेडिंग और कीमतों में इजाफे के बायस हैदराबाद में कांच की चूड़ियों का कारोबार करने वाले भी शदीद परेशान हैं। इस कारोबार से लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। चूड़ी की सनत हैदराबाद की पहचान है और इससे तकरीबन 4 से 4.5 लाख लोग कारोबार वाबस्ता है, जिसमें घरेलू ख़वातीन भी है जो घरों में जो है ये काम करती हैं। लेकिन इन दिनों जो है महंगाई और गैस की लोड शेडिंग ने जो है इस कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद जो है वो बड़ी तेज़ी से बेरोज़गार हो रहे हैं और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो कारोबार ना होने की वजह से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये दिन जो है वो सीज़न के दिन कहलाते हैं, चूँकि ईद पर पूरे पाकिस्तान में यहाँ से चूड़ियाँ बनकर जाती हैं। कांच की बनाई जाने वाली चूड़ियाँ पूरे पाकिस्तान में जो है यहाँ के लोग यहाँ से जो है पहुँचती हैं। लेकिन अब जो है इन दिनों भी ये सूरत हाल है कि यहाँ कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। वजह यह है कि एक तो महंगाई बहुत हो गई है, दूसरी बात यह है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो हुकूमती पॉलिसियाँ इस कदर गैर मुस्तहकम है कि यहाँ कारोबार करने वालों का जीना दूभर हो गया है। जी, सिब्बी मेले के दूसरे रोज़ बच्चों समेत खवातीन की बड़ी तादाद मेला देखने पहुंच गई। खवातीन मेले में चटपटी चीज़ें खाने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब बच्चियां झूले झूलकर लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं। मज़ीद जानेंगे रमेश कुमार से। जी, जैसा कि अगर बात करें सिब्बी मेले के हवाले से, तो आज सिब्बी मेले का दूसरा रोज़ है और सिब्बी मेले के दूसरे रोज़ ख़वातीन का दिन रखा गया है, जबकि आज के दूसरे रोज़ ख़वातीन बड़ी तादाद में सिब्बी मेले को एंजॉय करने के लिए वो आए हुए हैं। जबकि हमारे साथ इस वक्त कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं सिब्बी मेले को वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अक्सा है और हम इधर सिब्बी मेला घूमने आए। आज इधर लेडी शो रखा गया है और हमने बहुत इंजॉय किया है। हमने आइसक्रीम वगैरह, टिक्का, चाट, बहुत सी चीज़ें खाई है और बहुत इंजॉय करे। हमने यहाँ झूले वगैरह देखे, नुमाइश देखी। हम यहाँ पे घूमने के लिए आए, अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं और यहाँ पे हमने झूले खाए। यहाँ पे स्टॉल्स रखे हुए हैं, हमने बहुत सी खरीदारी की है और यहाँ पे हमने सर्कस देखा है। यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि आज सिब्बी मेले के दूसरे रोज़ हम लोगों ने यहाँ पे चटपटा चीज़ें भी खाई हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं उनको वहाँ पर भी हम गए हैं और झूले भी खाए हैं और सर्कस भी पे भी गए हैं। जी, सेवन शरीफ के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। इंतजामिया की नाहली के बाद शहर में वाटर फिल्टर प्लांट 6 माह से गैर फाल है। शहरी मुजरे सहित पानी पीने से मुताबिक अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे हैदर अली बलोच से। जी, इस वक्त मैं तहसील सेवन शरीफ के वाटर सप्लाई स्कीम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की अदम तवज्जही और नाअहली के बायस जो शहर का वाहिद आर ओ प्लांट है, फिल्ट्रेशन प्लांट, वो गुज़िश्ता 6 माह से गैर फ़ाल है। सेवन शरीफ के शहरियों को जो साफ़ और शफाफ पानी मुहैया करने वाला जो फ़िल्टर प्लांट है वो इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बायस ताहाल फ़ाल ना हो सका है। हमारे साथ इस वक्त सेवन शरीफ का एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो सेवन शरीफ में वाटर सप्लाई का पानी बिल्कुल जो है पीने के लिए नाकारा है और ये अभी मुर्शिद लाल शहबाज कलंदर का उस मुबारक आ रहा है, उस वजह से यहाँ पे बाहर से लाखों लोग आएंगे और उनको तो कम से कम साफ पानी जो है मुहैया कर सकें। हम सेवन वाले, हमारे नसीब में तो यही पानी लिखा हुआ है। जी, आपने यहाँ पर मौजूद शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि सेवन शरीफ का जो वाहिद आर ओ फिल्ट्रेशन प्लांट है वो गुज़िश्ता 6 माह से गैर फ़ाल है। अभी सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर का सालाना उर्स मुबारक शुरू हो रहा है, जिसमें लाखों ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। लिहाजा ये फ़िल्टर प्लांट की बंदिश और गैर फ़ाली का नोटिस लेकर जल्द से जल्द शहरियों को साफ़ और मयारी पानी। उधर ओबाड़ों में गंदगी के अंबार लगे हैं। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद है। गंदे पानी से शहरी मूसी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे अब्दुल मजीद शर्फ से। जी नाज़रीन, बिल्कुल ओबाड़ों का जो सफाई का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, जबकि ड्रेनेज का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। आज हम एक्साइज थाने के बिल्कुल ही साथ हम मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक्साइज थाना है और यहाँ पर ये जो पानी जमा है ये कोई तालाब वगैरह नहीं बल्कि गटरों का गंदा पानी है,
जो खानपुर मोहल्ला के बिल्कुल ही साथ में बड़ी मिकदार में जमा है। यहाँ के जो मकीन है उनका कहना है कि इस पानी की वजह से जो मच्छरों की अफजाइश है उसमें भी बेपनाह इजाफा हो रहा है और इस पानी के ताफुन की वजह से जो है लोग बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं। आप मेरे अकब में बिल्कुल ही पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जामिया मस्जिद का मीनार भी आपको नज़र आ रहा होगा अकब में। मस्जिद भी बिल्कुल ही जामिया साथ है, जिसके बावजूद भी यहाँ पर जो सफाई अमला है उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। इस पानी की वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है, इस मोहल्ले के जो मकीन है, उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, मच्छरों की बेपनाह जो है यहाँ पर अफजाइश हो रही है। यहाँ के इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से ये अपील की है कि उनका ये देरीना मसला हल करके उनको जो है मुश्किलात से बचाया जाए। जी उधर दुनियापुर में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया की नाहरी के बायस गलियां मोहल्ले गंदे तालाब का मंजर पेश करे। इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे राव शौकत अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 1 की गलियाँ जो है इस वक्त झील और तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। सीवरेज के गंदे पानी के बायस यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन और स्कूल के बच्चे मौजूद हैं जिनको जो मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद इलाका मकीन से जानते हैं कि इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। सर ये गलियाँ जो ख़राब हैं उसमें जो नमाजी गुजरते हैं वो भी परेशान होते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, तो ये बच्चे स्कूल से आते हैं तो इनके लिए भी परेशानी बनती है और बहुत हालात ख़राब हैं यानी कि गलियों के। जी जैसा कि इलाका मकीन का कहना था कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हमारे यहाँ पर कपड़े जो है ख़राब हो जाते हैं और साथ ही स्कूल के याकब में एक स्कूल भी मौजूद है जिसके बच्चे स्कूल में आते और जाते हुए शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। बच्चे यहाँ पर गंदे पानी में जो है गिर जाते हैं, इनकी बाइक स्लिप हो जाती हैं। तो इनका डिप्टी कमिश्नर लोधरा सीओ दुनियापुर और असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर से यही मुतालबा है कि इस सीवरेज के दरीना मसला को हल किया जाए ताकि हम यहाँ जो है पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। जी और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। गुजरांवाला में मंचलों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ खूब बसंत बनाई गई। कई पतंगों की डोरे फिरने से एक खातून जाँ भाग जबकि 7 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। मंचलों की जानिब से पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की गई। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर मजीद से। गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज़ नौजवानों की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान किया गया था। इस बसंत को रोकने के लिए गुजरांवाला पुलिस की जानिब से सरतोड़ कोशिशें की गई, लेकिन इसके बावजूद जो गुजरांवाला के मंचले हैं उन्होंने खूब बसंत मनाई, खूब जो है पेचे लड़ाए और कानून का भी बोकाटा किया। जो कटी पतंग की डोरे फिरने से 7 से ज़ायद जो है अफराद ज़ख्मी हुए हैं इसमें, जबकि एक जो मोमर खतून है वो जाँ बहक हुई है। पुलिस की जानिब से बड़े दावे किए गए थे बसंत गुजरांवाला में नहीं मनाने दी जाएगी, लेकिन मंचलों ने अपनी छतों पर चढ़कर खूब पतंगबाजी के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की है। पिस्टल के जरिए पहले तो साथ खड़े नौजवान पतंगबाजी कर रहे हैं और साथ में हवाई फायरिंग भी की जा रही है। पुलिस का ये बड़ा दावा किया गया है कि 60,000 से ज़ायद पतंगें पकड़ी गई हैं, जबकि 3 MPO के तहत 4-5 मुलजमान को 3 माह के लिए जेल भिजवाया गया था। लेकिन इसके बावजूद शहर गुजरांवाला में बसंतबाजी होती रही। पुलिस का कहना है कि छापामार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिन्होंने फायरिंग की है और जो पतंगबाजी करते हुए दिखाई देंगे आज भी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए 4 बहनों का भाई हाफसाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान 22 साल कासिम इटली में कश्ती हादसे का शिकार हो गया। कासिम की मौत की खबर मिलते ही घर में सफ़े मातम बिछ गई। हाफसाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला 22 साल नौजवान कासिम 3 माह पहले तुर्की गया था और तुर्की से ही शिप पे इटली के लिए रवाना हुआ। कश्ती में 20 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवान सफ़र कर रहे थे कि कश्ती समंदर की बेरहम मौजों का शिकार हो गई। कासिम के वालिद मकसूद का कहना है कि कासिम की डेड बॉडी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचाया जाए ताकि लवाहिकीन को सब्र मिल सके। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। जाफराबाद में 1 साल गुजर जाने के बाद भी सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द कम न हो सके। मुतासरीन के नाम पर करोड़ों रुपए मिले मगर जाफराबाद के सैलाब मुतासरीन की हालत न बदल सकी। गुज़िश्ता 2 दिन की बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। सैलाब मुतासरीन अब तक हुकूमती नुमाइंदों और ज़िले इंतज़ामिया की राह तकते रहे लेकिन कोई हाल तक पूछने न आया। इनायतुल्लाह हुर की रिपोर्ट। जाफराबाद के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। साल गुजरने को आया लेकिन मसाइल हल न हो सके। गुज़िश्ता 2 रोज की बरसात ने मुतासिरीन के दुखों में मजीद इजाफा कर दिया। अरबों रुपए की इमदाद सैलाब मुतासिर तक न पहुंच सकी। मुतासिरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। न कोई हमारे पास राशन है, न कोई कमरा है, न कोई टेंट है, न कोई वगैरह है।
ये देखें सामने घर भी गिरे पड़े हैं, कोई हमारा तहफ़्फ़ुज़ वाला नहीं है। सैलाब मुतासिरीन का कहना था जिले इंतजामिया ने सिर्फ ऐलानात किए, अमल नहीं किया। हमारे बच्चे खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। इससे पहले कि बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाए, हुकूमत हमारे मसाइल हल करे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मारूफ गुलकारा और वसीला राह की चीफ एग्जीक्यूटिव हदीका कियानी की जानिब से फौज के साथ मिलकर बेघर होने वाले सैलाब मुतासरीन को छत फराहम कर दी गई। तफसीलात बताएंगे नसीराबाद से लियाकत अली। हदीका कियानी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा और वसीला राह की चीफ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए नसीराबाद पहुँच गयी। अकेले लगी हुई थी, इधर से मट्टी बना के तो ये घर बना रहे थे। हदीका कियानी ने पहले मरहले में 100 मकानात की तामीर मुकम्मल करवाकर मुतासरीन के हवाले कर दिए, जबकि दूसरे मरहले में 200 मजीद घरों की तामीर के काम का आगाज किया जा रहा है। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल वसीला राह के नाम से जो मेरी कैंपेन है, उसमें एक वसीला राह मैटरनिटी क्लिनिक है। सैलाब मुतासरीन की ख्वाहिश पर हदीका ने मुख्तलिफ नगमे भी सुनाए, जिससे मुतासरीन के चेहरे खिल उठे। हदीका कियानी का कहना था सैलाब से मुतासर इलाकों में मस्जिद, स्कूल समेत दीगर सहूलियात भी बनाई गई हैं। नसीराबाद की तहसील छतर के इलाके कुंडी समेत दीगर इलाकों में भी मुतासरीन को घर बनाकर दिए जाएंगे। गुलकारा हदीका कियानी ने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों की मदद के लिए हर मुमकिन इमदाद की फराहमी जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। लियाकत अली, न्यू न्यूज़, नसीराबाद। हालिया सुपीरियर कॉलेज में स्पोर्ट्स कार और कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में तलबा और तालिबात ने चारों सूबों के इलाकाई लिबास में परफॉर्मेंस दी और तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फेस्टिवल में रिवायती रक्स, भंगड़ा, रस्साकशी, घोड़ा डांस समेत दीगर खेलों का मुजाहरा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हालिया आदिल उमर बड़ाइश का कहना था कि वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। उनका मजीद कहना था कि हमें अपनी सकाफत पर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इस वतन की तहजीब दुनिया की खूबसूरत तरीन तहजीब है। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में ट्रॉफियाँ और शील्ड्स तकसीम की गई। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ऊँटों को रेगिस्तानी जहाज़ कहा जाता है, जिसके बारे में सब जानते हैं। ये सहराओं में आसानी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं, लेकिन सुहावा के इलाके डोमेली में ऊँटों के दरमियान दर्जनों मन वज़न उठाकर खड़े होने का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अजला से सजे सवरे ऊँट लाए गए। तनवीर चौधरी की रिपोर्ट। जेहलम की तहसील सोहावा के इलाके डोमेली में सकाफती मेला, रेगिस्तानी जहाजों पर वजन उठाने के शानदार मुकाबले। ऊँटों ने 20 मन से 37 मन तक वजन उठाया। जेहलम समेत डेरा इस्माइल खान, चकवाल, मियांवाली और गुजरात से ऊँटों को अखाड़े में उतारा गया। ऊँटों को रंग बिरंगे फूलों और सजावटी कुलियों की मदद से खूब तैयार करके मैदान में लाया गया। अखाड़े के मेहमान खसूसी साबिक MP चौधरी नदीम खादम, सुहेल शफीक और मलक मुदस्सिर थे, जबकि जिला भर से शायकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आज़ाद कश्मीर से लोग आते हैं, उसके बाद डेरा इस्माइल खान से लोग आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेहलम, डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट चकवाल से, ये और डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से लोग जो है वो सकाफती प्रोग्राम और इसका शौक रखने वाले हैं। मुकाबले में जीतने वाले ऊँटों के मालकान को नकद रकम और ट्रॉफियाँ इनामात में दी गयी। कैमरा टीम के साथ तनवीर चौधरी, न्यू न्यूज़, जेहलम। नेशनल रोप जंप एंड रोप स्किपिंग चैंपियनशिप सूबा सिंध ने जीती। बलूचिस्तान ने दूसरी और KP ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कराची से जाहिद गफ्फार की रिपोर्ट। कौमी रोप जंप एंड रोप स्कीपिंग चैंपियनशिप का इनेकाद जामा कराची के स्पोर्ट्स जिम्नाजियम हॉल में हुआ। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान के खिलाड़ियों ने भी इवेंट में शिरकत की। पाकिस्तान स्कीपिंग रोप फेडरेशन के सदर मकबूल अनाही का कहना था, इवेंट का मकसद खेल को फरोग देना और रवा साल इन मुकाबलों के आलमी इवेंट में शिरकत करना है। इस इवेंट को कराने का मकसद ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पर स्कूल इवेंट, कॉलेज इवेंट करवा रहे हैं और फर्स्ट नेशनल करवा रहे हैं। इसमें बच्चों की अवेयरनेस, बच्चों की सिलेक्शन और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के
حوالے سے ان کی تربیتی کیمپ لگائے جائیں گے. نیشنل چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑی بھی ایونٹ کے انعقاد سے خوش نظر آئے. میں یہی کہوں گی اگر ایسے ایونٹس کروائے جا رہے ہیں تو شروع سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اس کی باقاعدہ کوچنگ ہونی چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. تو آج میں ادھر فرسٹ ٹائم آئی تھی روپ اسکیپنگ کے لیے, مجھے بہت مزہ آیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. کراچی یونیورسٹی کے اندر جو یہاں پہ گیم ہو رہا ہے, نیشنل گیم ہو رہا ہے, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ایز اے اسکیپنگ ایز اے نیشنل. فیڈریشن کے سینئر نائب صدر محمد سلیم اور صدر مقبول ارائیں اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے, جنہوں نے جیتنے والی ٹیموں میں ٹرافیاں, میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. تقریب میں راجہ نوید اختر, محمد یوسف, بشرا مجیب, فاطمہ زہرا, بلال حسین اور دیگر نے بھی شرکت کی. خبروں میں اب تک اتنا ہی. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.